Hello learners, this is Kamaksha Mishra from SCERT Uttarakhand. In today's session, we'll discuss Chapter 4 of our English textbook for class 6th, Honeysuckle, and the name of the chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So let us begin. In this session, we'll read the text with correct pronunciation. Then we'll discuss some difficult words along with their meanings. And here we'll try to identify some determiners that are used in the text. And an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. As we all know, Kalpana Chawla is the first Indian American woman to go to space, and here's a news report in this regard that has been introduced in the chapter. Tragedy in space. US Space Shuttle Columbia breaks into flames. In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia, carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. 19.30 hours IST as it came in for landing. It was flying at an altitude of over 200,000 feet and traveling at over 20,000 kilometers per hour when ground control lost contact with the shuttle. Columbia had lifted off on 16th January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. It was Columbia's 28th space flight, and the shuttle was set to be good for 100 flights. Now we've come across a word called unprecedented. What does this mean? Unprecedented means uncommon, something that doesn't occur normally. यहाँ एक न्यूज रिपोर्ट शेयर की गई है जिसमें एक स्पेस ट्रेजेडी के बारे में बात की गई है एंड द टाइटल इज यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। इस ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूएस स्पेस एजेंसी नासा, दैट इज नेशनल Aeronautic and Space Administration, which in the US, was heading a flight that was carried over by astronauts who were boarding the shuttle called Columbia. Columbia नाम के शिप से, स्पेस शिप से एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स वहां पर परफॉर्म किए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो उड़ रहे थे 200,000 फीट्स ऊपर और 20,000 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से जब ये ट्रेजेडी हुई। ये स्पेस शटल कोलंबिया 16 डेज के लिए स्पेस में रहा और जब वो
अर्थ में री एंटर कर रहा था तो वो क्रैश हो गया। उसमें 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे 7 मेंबर्स इस ट्रेजेडी में मारे गए थे। एंड दिस इज द न्यूज दैट वाज published in the newspaper. Now let's move on to the chapter. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree in the United States of America. Now, what happened? कल्पना चावला ने करनाल नाम के शहर में जन्म लिया और उस समय उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी और अंतरिक्ष को, स्पेस को एक्सप्लोर करेंगी। उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग करने के लिए अनुमति दी और इससे पहले वो टैगोर स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जब उन्होंने बैचलर्स डिग्री साइंस में ले ली, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की यानी स्पेस इंजीनियरिंग की, उसके बाद उन्हें मास्टर्स डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना था, जिसके लिए उनके फादर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ही वॉज अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ हर्स, बट फाइनली शी वेंट टू the United States of America to pursue her studies. Now here, one thing we have to remember, we have to identify the determiners also. Determiners क्या होते हैं? Determiners वो words होते हैं जो nouns को modify करते हैं, उन्हें describe करते हैं या फिर उन्हें introduce करते हैं। तो यहाँ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर ऐसे कुछ मॉडिफायर्स आए हैं या ऐसे कुछ डिटरमाइनर्स यूज हुए हैं। ये डिटरमाइनर्स कैसे होते हैं? जैसे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स इस कैटेगरी में आते हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव इस कैटेगरी में आते हैं, लाइक दिस एंड दैट। इसके अलावा पोजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं जैसे माई, देयर, या फिर कार्डिनल न्यूमरल्स भी इसमें आते हैं लाइक 1 और 2, और क्वांटिफायर्स इसमें आते हैं लाइक मैनी, बोथ, ऑल, सम। सो विल ट्राई टू फाइंड आउट सम सच वर्ड्स लाइक हियर वी सी one such determiner is the United States of America. We know United States of America is the name of a country and it's a noun and it's a proper noun, and the is describing this noun. So it is a determiner, and similar determiners you are supposed to identify from the text. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. Now what happened afterwards? मास्टर्स करने के बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, और इसके बाद वो
पहली इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट बन गई। एस्ट्रोनॉट मीन्स अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, एक व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करता है और स्पेस में रिसर्चेस करता है। He or she is known as an astronaut. So she became the first Indian American woman astronaut who successfully participated in the space mission that was launched from Cape Canaveral, Florida. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes, and gliders. She was also a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. She was first hired as a research scientist at NASA. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. Now, what happened next? It says that Kalpana हरियाणा के करनाल शहर में पैदा हुई, लेकिन वो एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, हियर नेचुरलाइज्ड मीन्स टू मेक समबडी अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री वेयर ही और शी वाज नॉट बोर्न। एक व्यक्ति जो उस कंट्री में पैदा नहीं हुआ लेकिन उसे वहां का नागरिक बनाया जाता है। Such kind of a citizen is called a naturalized citizen. और उनकी शादी हुई फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से। इसके अलावा वो एक एस्ट्रोनॉट तो थी ही, साथ ही साथ वो लाइसेंस्ड थी सिंगल एंड मल्टीपल इंजन लैंड एयरप्लेन्स को उड़ाने में, सिंगल इंजन सी प्लेन्स को उड़ाने के लिए और इवन ग्लाइडर्स को उड़ाने के लिए। साथ ही वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। जब उन्होंने एक पायलट की तरह क्वालिफाई कर लिया तो उनके सामने एक नई चुनौती आई, और ये चुनौती थी कि उन्हें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, दैट इज नासा, वहां के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना था। सबसे पहले उन्हें नासा में रिसर्च साइंटिस्ट की तरह हायर किया गया एंड फाइनली 1994 में उनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. जब कल्पना चावला से पूछा गया कि उन्हें कैसा लगता है कि वो अपनी फील्ड में एक वूमन है, एक फीमेल है, उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कभी भी अपनी स्टडीज के दौरान, अपनी स्टडीज को परस्यू करने के दौरान, परस्यू मीन्स व्हेन शी वाज फॉलोइंग और शी वाज कंटिन्यूइंग विद हर स्टडीज, जब वो स्टडीज कर रही थी उसके दौरान उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो एक वूमन है, वो एक महिला है
या एक छोटे शहर की रहने वाली हैं या फिर किसी दूसरे देश की नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि उनके भी दूसरे लोगों के जैसे सपने हैं और उन्हें उन सपनों का पीछा करना है, उनको पूरा करना है। उनके आसपास जो भी लोग रहे वो सौके से ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया और कहा कि अगर आप ये करना चाहते हो तो इसे पूरा करो। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन स्पेस शटल कोलंबिया में था, जो कि 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा रहा। इस दौरान उन्होंने 252 टाइम्स अर्थ के चक्कर लगाए और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की यात्रा की। उनके क्रू में उनके ग्रुप में एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे। उनके क्रू ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। पॉलिनेटिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्पेस में फूड ग्रो किया जा सकता है या नहीं। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए जिससे मेटल्स को स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके और कंप्यूटर चिप्स को और फास्टर बनाया जा सके। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स $56 मिलियन के प्राइस में हुए। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. शनिवार की उस रात को जब यह ट्रेजेडी हुई, जब कोलंबिया डिजास्टर हुआ, एक बहुत भयानक दुर्घटना घटी, तो ये समय सभी के लिए बहुत ही अधिक शॉक, बहुत ही अधिक झटके, आश्चर्य का समय था और साथ ही कोई भी इसे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। करनाल शहर ने पूरी रात बिना सोए गुजारी और हजारों घरों के लोग अपने टीवी सेट्स से चिपके रहे। दे स्टेड ग्लूड टू देयर television sets, means they stayed fastened. They didn't get up from there just to have a news of survival of the crew. वो सब इसी आशा में बैठे रहे कि उन्हें कहीं से उस पूरे ग्रुप की खैरियत की खबर मिले और किसी तरह से ग्रुप मेंबर्स सरवाइव कर जाएं, वो सब जिंदा हों। Here we've come across another determiner there. This is also a determiner. And similarly, you have to find such determiners that are there in the text. A journalist wrote, "She was a heroine. It takes enormous ability
to become an astronaut? You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. एक जर्नलिस्ट ने उनके विषय में लिखा कि वो एक हीरोइन थी, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए यानी एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहुत सारी एबिलिटी चाहिए. You need to have enormous ability. Enormous means very great or very big ability you need to have if you wish to become an astronaut. आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, चाहे वो बायोलॉजी हो या एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो या फिर वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, यानी कि स्पेस क्राफ्ट्स के विषय में विज्ञान हो. लेकिन आपको हर चीज की जानकारी होनी आवश्यक होती है. आज का युग सुपर स्पेशलाइजेशन का युग है, तो आपको बिल्कुल एक एनसाइक्लोपीडिया की जैसी नॉलेज की ज़रूरत होगी एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए. एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी किताब होती है जिसमें हम बहुत सारी जानकारी जिससे निकाल सकते हैं और बहुत सारे बहुविषयी जानकारियां हम उसमें से निकाल पाते हैं. और इस सेंस में अगर हम कल्पना चावला की अचीवमेंट को देखते हैं तो वो बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग है, मतलब अद्वितीय है, और वो हम सब को मोटिवेट करती है, हम सब का उत्साहवर्धन करती है, इंस्पायर करती है. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off this journey to fulfill their dreams." Adapted from Span, January-February 1998. भारत के जवान बच्चों के लिए कल्पना चावला की ये कहानी एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है. एक ऐसी लड़की जो एक छोटे से शहर से आई थी और उसने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ. अपने एक मैसेज में जो उन्होंने अपने स्पेस शटल कोलंबिया से भेजा था अपने कॉलेज के लिए, अपने कॉलेज के बच्चे, चंडीगढ़ के कॉलेज के बच्चों के लिए भेजा था, और उस मैसेज में उन्होंने कहा था कि सफलता का रास्ता सपनों से निकलता है और ये रास्ता है. आप सभी को ये रास्ता ढूंढने की दृष्टि मिले और इस पर चलने का साहस मिले. एक अच्छी महान यात्रा के लिए आप सबको शुभकामनाएं. और निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा पर निकलेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. एंड नाउ हियर वन होम असाइनमेंट इज देयर फॉर यू. द क्वेश्चन इज, डू यू नो हु इज एन एस्ट्रोनॉट? क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होता है? हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि एस्ट्रोनॉट एक अंतरिक्ष यात्री होता है जो कि स्पेस में जाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है और स्पेस को स्टडी करता है. नाउ द असाइनमेंट फॉर यू ऑल इज collect
some information about two astronauts other than Kalpana Chawla. हमने यहाँ कल्पना चावला के विषय में पढ़ा और इसी तरह आप दो और एस्ट्रोनॉट्स के बारे में जानकारी जुटाएंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे. So in this session we read the text with correct pronunciation. Then we discussed some difficult words along with their meanings. And we tried to find some determiners that are used in the text. So learners, I hope this session must have been beneficial for you all. आप सबको कल्पना चावला जो कि एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी and she was the first Indian woman to go into space, उनकी आपको स्टोरी पता चली और साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरह वो एक बहुत ही ग्रेट मिशन पर अपने स्पेस शटल कोलंबिया से निकली थी और 16 दिन की यात्रा के बाद वो स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लेकिन उन्होंने किस जज्बे के साथ एक छोटे से शहर से अपनी शुरुआत करके आसमान की ऊंचाइयों को छुआ और सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. इन द नेक्स्ट session, part 2, will be discussing the exercises that are given in the textbook. That's all for today, and till then, take care and bye-bye.